religion, right? So what we have so far covered in religion, that what is religion? Topic 1. Then second was approaches to the religion, right? Then different type of religion, right? In different form of religion in simple society, we discuss about the animism, animatism, naturalism or naturalism, then fasticism. Then we were discussing about totemism, right? In totemism, as we have discussed, what is totem, right? There is it's a Ojibwawan tribe. There is a tribe called as Ojibwa, right? So in Ojibwa, this word is derived from the Ojibwa terminology, in which it is called about right? Totem means one's brother, sister. Ojibwa is a tribal. So in this word totem, वो सब अफ्रीकन ट्राइब से दिया. So in totemism, Ojibwa is a word, right? In Ojibwa, totem is a word which means one's brother, sister, kin, right? So this is and totem is actually connected to the descent of someone, a plant or a totem is a plant or animal species which is connected to the descent line of any tribe, and that tribe associate itself to that particular plant or animal species which is regarded as totem, and worship of totem or worship of that symbol is called as totemism, right? Durkheim, right? Durkheim gave a systematic description about the totemism. To Durkheim, totemism is the primordial religion for the simple societies, right? And this totem is sacred, right? This totem is sacred and its worship. Third, it is the symbol of society. So according to Durkheim, worship of totem is actually worship of society. In this term, God is society, right? And this was the beginning of worship. People worship itself as a group, as a unity, as a connection, right? And when a group become larger and larger, right, then they divided into different, and each descent line adopted one totem, right? And in this way, all these totem became exogamous, right? Because they belong to the same descent. So exogamy practice started with the totemism, right? With that, Durkheim propounded the concept of profane and sacred. Those which are supernatural, those which are religiousness to the worship, they all are sacred. And those are with the nature, ordinary, they all are profane. So supernatural powers are associated with the sacred thing. And people worship sacred and they live with the profane. Clear? And totem, as we discussed, is the earliest religion system or earliest religious or belief system, and all the practices
which are relevant to the totemism. They all are there to unite a society, a group. So totemism is actually the symbol of the society. Now, why totem? As we discussed, Sigmund Freud already conceptualized in terms of Oedipus complex, and he already told a story about the Australian Aborigines, how they killed and ate their father, and then they conceptualized a totem as their fatherly symbol, and then sacred worship, everything has been started, right? So earlier it was postulated that totem were good to eat, right? But to control, to regulate, and due to their viability, they conserved in terms of totem. So only at the time of annual function, they eatable, otherwise they were at the conservation. They were rare. Next, Radcliffe Brown. Radcliffe Brown told that yes, totem is invite the society, totem is there to maintain the structure, right? They started with that one, right? And then Levi-Strauss gave a model in which he told that all the totems are actually, yes, not always good to eat, because in many descents, plant and species which are carnivorous in nature and which are not eatable were their totem, right? So to Levi-Strauss, totem are good to think, and totem are the symbol of exogamy. So where there will be exogamy, there will be totemism. Where there will be totemism, there will be exogamy, right? So Levi-Strauss associated exogamy with the totemism, but it is not always correct, right? In modern society now, totemism is no more relevant. Nowadays, people are not always see the totems. Sometimes in a society you will find numerous totems or the common totems in women. It cannot be possible. Women are from different totem, right? If they have common totem, it means exogamous tendency is not obeying. So it is happening, right? So finally, Radcliffe Brown also told that not this postulate is not associated with good to eat only. उसने भी इसको छोड़ दिया. उनकी immortality. Why those people are totem? Immortality. The sense of immortality, sense of power, sense of control. तो उसको टोटेम बनाने का मतलब वही बात हो गई. नहीं, आप क्रोकोडाइल को कैसे खा लोगे? खाते, बट नॉट दोज जो ट्राइब्स है, दे डू नॉट ईट देम. कार्निवोर को वैसे खाया नहीं जाता, क्योंकि उनके अंदर जो बैक्टीरियाज है, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, वो आपकी बॉडी को सूट ही नहीं करेगा, बिकॉज दे आर देयर टू डाइजेस्ट, नॉट टू किल्ड, राइट? हर्बीवोर्स आर देयर टू ईट, नॉट टू किल. तो दोनों का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग होता है. एंड बिकॉज कार्निवर ऑलरेडी ईट एनिमल्स, दे ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद सो मेनी थिंग्स, राइट? तो वो सीधा करते, इसलिए कार्निवोर को नहीं खाया जाता है. आप किसी भी रिलीजन में उठा के देख लो, किसी भी कार्निवोर को खाने लायक नहीं बताया गया है. चाहे वो कैमल हो, चाहे वो सीप हो, चाहे वो गॉट हो, चाहे वो बर्ड्स हो. क्या कोई कार्निवोर को लिखा गया है कि आप खाओ? नहीं, कोई नहीं करता था. हिरन का शिकार लिखा हुआ है. बिकॉज कार्निवोर आर नॉट देयर टू ईट, दे आर कार्निवोर्स, दे आर प्रेडेटर्स. किसमें? फिशेज कार्निवोर नहीं है. फिशेज को उस श्रेणी में नहीं रखा जाता है. फिशेज का पूरा एक्वा का सिस्टम ही अलग है, वो सिस्टम ही उनका अलग है. फिशेज का तो पूरा, फिशेज आर द सिंपलेस्ट एनिमल ना, स्टार्ट स्पीशीज से हुआ है ना. तो अगर हम माने तो लाइक आफ्टर प्लांट द सिंपलेस्ट आर फिशेज, एक्वा एनिमल्स. सो व्हाई डॉक्टर्स आल्सो प्रिस्क्राइब्स द फिशेज, nuts.
वो तुमको मटन चिकन की कभी सलाह नहीं देगा, टिल यू हैव स्पेसिफिक चीज तो कभी तुमको नहीं बोलेगा। वो कहेगा ओट्स, नट्स, फिशेस, राइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ज्यादा तो तुमको उसका, और लीन चिकन की बात कहते हैं, विंग्स वगैरह, बाकी वो आपको कभी नहीं कहेगा, बिकॉज दे आर द सिंपलेस्ट वन। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, थिंग्स आर गुड टू ईट व्हेन दे आर डिस्टेंट इन रिलेशंस, नॉट प्रॉक्सिमिटी इन रिलेशंस। तो कार्निवोरस को आप खाओगे कैसे, वो तो तुम्हारे बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, तुम्हारे बहुत पास में है। जितने दूर जाते, सबसे दूर हमारे कौन से, हर्ब्स, तो वो खाना आपकी पेट बॉडी के लिए ठीक है, बिकॉज देयर स्ट्रक्चर जो है, सेल स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है, फ्री है, यू कैन डाइजेस्ट इट। उसके बाद फिशेज आती है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फूड का डाइजेशन, उसका इम्पैक्ट, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर, वो सब तुमको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगा, राइट? इसीलिए इसमें सिस्टम था। सो देयर आर सो मेनी एनिमल जो गुड टू ईट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि टोटेम्स आर नॉट ऑलवेज दोज विच आर गुड टू ईट, गुड टू थिंक, बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन स्पीसीज एंड दैट स्पीसीज इज सेक्रेड फॉर यू। इट मे बी एनी रीजन, not the food, because food is necessity in tribal societies. The prime basic necessities are at the superior most level, other at inferior most level. They think about food first, then about the family, marriage, then other things. Polity economy बहुत पीछे है, substantive economies है। तो in substantive economies food is in priority, right? Not money, value, thing. Food is at priority. तो उसने कहा टैबू, टोटेम की शुरुआत कैसे हुई, विद दिस फूड, राइट? बट विद द कोर्स ऑफ टाइम नॉट ओनली दिस फूड थिंग्स बट अदर थिंग्स ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ टोटेम। अब जैसे क्रो है, ओल है, दीज आर द टोटेम। तो कौवे को खाया किसी ने, ओल को नहीं, फाल्कन्स को नहीं, इनको कोई नहीं खाता है, बाज को मार के कोई नहीं खाता है, अदर बर्ड्स खाते हैं। So this was thing. So in totem, finally we can say that totem is actually symbolize the society, and totem worship is actually the worship of society. So beginning of worship started with the unity, cooperation, right? That was the first thing. ये था totemism, conceptualized by the Durkheim. Durkheim का रेटली ब्राउन बोलता है, लेवी स्ट्रॉस बोलता है। रेटली क्या बोलता है, वो बात करता है गुड टू ईट, बाद में छोड़ देता है। उसके बाद में कौन बात करता है, लेवी स्ट्रॉस, इट इज गुड टू थिंक। देन द कंसेप्ट ऑफ डर्कहाइम अबाउट सेक्रेड एंड प्रोफेन। सो दिस इज अबाउट दिस। तो एनिमिज्म हो गया, एनिमेटिज्म हो गया, डेचोज्म हो गया, फेस्टिसिज्म हो गया और टोटेमिज्म हो गया। सो दीज आर द, और सेमनिज्म मीन्स प्रेजेंस ऑफ अ समन। समन कौन होता है, समन, the witch doctor, a person having specific abilities, extraterrestrial power. That person has that thing, the potential, very potent, not ordinary but more than ordinary. उसको shaman कहते हैं। So presence of shaman and worship through shaman is called as shamanism. जैसे जो वांसी है, इन्यूट एस्किमोज है, साइबेरियंस, राइट, नावोजाओज है। तो इन सब में क्या होता है, वी हैव द समन्स। ये समन्स क्या कहते हैं, टू देम दीज समन हैव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर, दे कैन टॉक टू स्पिरिट्स, स्पिरिट्स कम टू देम, दे आर द मीडिएटर्स वन, स्पिरिट्स, एंड दे हैव पावर टू हील, राइट, पावर टू चेंज द फेट। तो वो सेमनिज्म होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, राइट? नाउ afterwards, the important thing, there are two concepts which are very important for this chapter. These are myth and rituals. After every 2 years, a question have been asked on myth and rituals. What are the myths? What are the rituals? Right? Rituals, we have already stated that rituals are, what is rituals? Related to the act, ceremonial act of performance. Right? Ceremonial act of performance. And myth, saying words, stories, telling about the superordinary, extraordinary people, not human.
godly things. Will I start one by one first? Okay. First, let's talk about the myth. Myth, right? Myth is derived from a word about story, sayings. Myth is a word which is related to a storytelling or saying something, right? Myth is a word which is associated with the story or saying. It's a Greek word, and a word is derived from this called mythology, right? A word which is derived, this one is called as mythology, right? Myth. Look, Malinowski actually differentiated between three different concepts. One is myth, second legend, third fairy tales. So what is fairy tales? These are imaginative in nature, and no ritual is associated with the fairy tales. कथाएं हैं, right? ये था, वो था, परियां थी, एंजल थी, ये थी, देवता राक्षस, but no rituals are associated with the fairy tales, and legends are the part of history, right? Legends are the part of history. Myth, third is myth. Myth are associated with the rituals. Myth are actually the story of the extraordinary humans, godly people, right? Their work, their extraordinary activities, right? Like if we talk about the mythology, we say about the Ram and Krishna, right? So they are human or more than human? They were the god. देखो दो वर्ड ध्यान रखना, एक कहते हैं ईश्वर, एक होता है भगवान भी, है ना? कि प्रकृति किसने बनाई है? ईश्वर ने, राइट? सो ईश्वर जो है दैट इज बियॉन्ड. तीन तरह के कर्म होते हैं, बोलते हैं ना, तीन तरह के कर्म होते हैं. वन इज द कर्मा, द सिंपल एक्शन एंड कर्मा विच इज परफॉर्म बाय द ऑर्डिनरी पीपल, राइट? दूसरा अकृत कर्म which cannot be performed by the ordinary people. तीसरा होता है अन्यथा कर्म, which is beyond this one, जो कोई कर ही नहीं सकता, जो इससे परे है. This अन्यथा अकृत कर्मा is the ईश्वर. जो अन्यथा कर्म है, मतलब जो आप सोच नहीं सकते, उसके बियॉन्ड काम कर रहे हैं, राइट? भगवान वो है जो इस धरती पर आते हैं, राइट? इनकारनेशन होता है, दे कम हियर, और वो सारी चीजें करती है जो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, राइट? जैसे कृष्ण ने, लाइक व्हाट दे किल डिमंस. एक छोटी सी उम्र में पूतना को मार रहे हैं, 1 साल 2 साल की उम्र में गोवर्धन उठा रहे हैं. इज इट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन? है एक अंगुली में गोवर्धन उठा देना, राइट? पॉसिबल था क्या? क्या किसी पर्सन के लिए शिव का धनुष तोड़ना पॉसिबल था? रावण को मारना? Not possible. So they people come to this earth and they feel that they are God. They make us feel that they are God, right? और वो सारी एक्टिविटीज करते हैं जो उनसे मिली होती है. So myth उन स्टोरीज का कलेक्शन है, those extraordinary stories, वो सारी टेल्स, स्टोरीज जो उन एक्स्ट्रा ह्यूमंस के लिए कही जाती है, राइट? जो आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़. वो एक प्रोग्राम होता है जिसमें कपड़े की लिपटी हुई आती है, वो कपड़े को खोलते हैं, उसमें पूरा देवनारायण जी जो देवता है, हमारे भगवान है, या पाबू जी की फड़ है तो पाबू जी के बारे में है, जो हमारे लोक देवता है, राइट? तो उनके बारे में पूरी रात वो बताते हैं, उनके किस्से बताते हैं. हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, देवनारायण जी. तो ये जो इनके लिए जो ये है, दीज आर द पीपल जो गॉड है, जो इस धरती पर आए हैं. उनके लिए आप मिथ वर्ड यूज करते हैं, उनकी धारणाओं को मिथोलॉजी कहते हैं. बट इफ वी से इन इंडियन पर्सपेक्टिव, मिथ इज नॉट ए वर्ड विच इज फिटेड टू आर सिस्टम. हम इन सबको अपने धर्म का पार्ट मानते हैं. दे आर नॉट धारणा है, ये धारणा नहीं है. धारणा के पीछे फिक्शन आता है,
दिस नॉट फिक्शन, वी से इट इज रियल। तो हमारे थॉट के हिसाब से तो ये नहीं बना, बट मिथ इज ए वर्ड जो उन ट्राइबल्स के लिए था जो किसी को वो हीरो मानते थे। उनके पास स्टोरीज थी अपने देवताओं के लिए कि उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, डिमंस को मारा, ये किया। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ मिथ। सो मिथ आर दोज स्टोरीज, दोज टेलिंग about the extraordinary people or the deities or the god, right, which are associated with some rituals, ceremonial act. All these are the myths, right? तो वो सब मिथ है जिसको जोड़ा गया है। और इस मिथ के बारे में सबसे पहले द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी वाज मेड बाय फ्रेंच बोआस। Franz Boas was the first person which associated these religious beliefs and practices to the social organization. So Franz Boas was the first person, right, which actually associated these religious beliefs. ये beliefs कौन है? These beliefs, ये beliefs कौन है? These beliefs are the myth. और ये practices कौन है? Yes. So Franz Boas was the first person which associated or tried to interacted or interpreted these with the social organization, means they are the integral part of society, right? They are the integral part of society. So Franz Boas was the first person which have seen these religious beliefs and practices as an integral part of social activities, social organization. He was the first person. Right? Second was the Malinowski. Right? Malinowski कहां पर है? कहां पे है ये बंदा? Trobriand? Right? In Trobriand, he went through so many myths, right, which were already prevailed in those tribal people. And to that, what he conferred, that these myths have a specific social power and prestige to unite, to integrate people, right? So Malinowski sees these myths as a force, to unite, right, and motivate. Unite and motivate. So to Malinowski, these myths work as a motivational force, right, to esteem the motivation of the society. And they are there to integrate or unite the society. Because for everybody they are same. They belong to the same mythology. They go through the same thing. So that unite, it's a force to unite. It's a force to motivate the people. And that he is seen in. So for Malinowski, it was an integrating factor. It was an For Franz Boas, it was a part of social organization, which organized the society, which integrate the society, which motivate the society, right? And third was Levi-Strauss. As I discussed, Levi-Strauss was a structuralist. More or less a philosopher, more or less a philosophic mind, a psychologic mind,
To him, everything is here in brain. Society is a structure which starts with the brain, right? So everything is in brain, everything is in mind, and society is the creation of mind. Society is the creation of mind. People thought, and to thought they conceptualize the whole society. And to Levi-Strauss, man always thinks in binary opposition. To Levi-Strauss, man always thinks in binary opposition, hot and cold, good and bad, right and wrong, veg and non-veg, sacred and profane, right? So to Levi-Strauss, in mind, everything comes in two way. अगर नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो, सब अच्छा होगा, नहीं बुरा भी हो सकता है, right? Our mind always think in two ways, and they both all are contrast to each other. They both are binary to each other. So sacred profane असल में क्या है? इसे बाइनरी अपोजिशन. माइंड ने दो चीज छोड़ी, एक अच्छा होगा तो दूसरा, एक सही होगा तो दूसरा, राइट. वन इज हॉट एंड सेकंड इज राइट, वन इज लाइट सेकंड इज डार्क, राइट. यही है ना दुनिया, बस लेविस्ट्रॉस यही बोलता है. सो टू लेविस्ट्रॉस व्हाट इज मिथ? सो लेविस्ट्रॉस कहता है एक्चुअली मिथ जो है, it actually the thought of mind, and these thought and thinking when gets independency to move to the extent to which they can move, myth will be there. When a person wants to solve that problem or they think about the solution of problem, they think independently to all extents, और वो एक्सटेंस मिथ पैदा करता है. मान लो किसी को भयंकर दुख हो गया, अब वो दुख को कैसे दूर करे, तो सोचता है कि एक ऐसी शक्ति होगी, एक ऐसा पावर होगा जिसके पास इतना पावर होगा कि दुख को दूर कर देता होगा. तो उसने कहा बस यही माइंड के अंदर है. व्हाट व्हाई द कंसेप्ट ऑफ सुपरमैन इज देयर? मैं तुमको उस दिन भी बोला था, सुपरमैन क्यों है? किसी के माइंड में आया होगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? सो माइंड थिंक इंडिपेंडेंटली बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेबिलिटी. जो तुम्हारे पास नहीं है उसके बारे में भी सोचेगा और फिर वो मिथ पैदा करेगा. सोचने का मिथ जो है वो माइंड की इमेजिनेशन थिंकिंग है, और थिंकिंग फ्री है, नो बाउंड्री. तो मिथ एक्चुअली डिनोट्स द फ्री थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ माइंड. इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ the free and independent thinking of mind. जो कॉन्ट्रास्ट पैदा करेगा, जो बाइनरी पोजिशन कहेगा, जो तुम्हें मिथ पैदा करेगा अच्छे और बुरे के बारे में. दिमाग देवता के बारे में सोचता है तो राक्षस भी तो सोचता है ना. जहां पर देव है वहां पे दानव है, राइट है ना. दैत्य है, असुर है, राक्षस है, पिशाच है. इधर तुम्हारे पास देवता है, भगवान है, ईश्वर है. क्या धर्म में दोनों चीजें नहीं है? कहां से आई? द बाइनरी अपोजिशन कि इफ देयर इज गॉड देयर विल बी इविल, है ना. अच्छा ही है तो हाँ, कहां से आई? यही लेविस्ट्रॉस है. लेविस्ट्रॉस बिलीव इन माइंड. ऑल व्हाट यू सी इज एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड, एंड माइंड ऑलवेज थिंक इन बाइनरी अपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट. सो विल फाइंड थिंग्स इन. कुछ लोगों को कच्चा पसंद है, कुछ को पक्का पसंद है, कुछ कच्चे को बुरा मानते हैं, कुछ राइट. सो द कस्टम्स आर एसोसिएटेड विद दैट डैम. इफ यू गो टू कुकीज पीपल, तो जब कोई नया आदमी आता है तो वो विद विंग्स उसको पूरा भून के और मुर्गा देते हैं. हमारे यहाँ विंग्स हटाते हैं. खाने का तरीका है, कुछ लेफ्ट कुछ राइट, कुछ थाली में कुछ बर्तन में. कुछ कढ़ाई में खाना बुरा मानते हैं, कुछ कढ़ाई में खाना अच्छा मानते हैं. कुछ एक साथ बैठ के खाने को अच्छा मानते हैं, कोई कहता नहीं अलग अलग खाओ, प्रॉब्लम है. एक साथ खाना अच्छा नहीं मानते हैं. थॉट. सो टू लेविस्ट्रॉस मिथ is actually the manifestation of mind when it thinks freely, beyond the boundaries, pure imaginations. These are the myth.
तो लेविस्ट्रॉस का कहना है। तो एक तरह से इसके लेविस्ट्रॉस के हिसाब से मिथ माइंड का मैनिफेस्टेशन है, राइट। मैलिनोस्की के हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फ्रेंड्स बोआ के हिसाब से सोशल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है। दीज आर द मिथ। देन somebody says, okay, myth are there, everybody has thinking in mind, thought in mind. Why myth? Why myth? Because myth has power to give logical explanation of things. So why myth are there? Right? Myth has power to give logical explanation of things about how universe originated, how it is running, right? Creation of universe, running universe, and a day the whole nature will get destroyed. Again, rebirth. So this whole cycle of origin and destruction will be explained by the myths. क्या तुमने देखा है? क्या तुमने जाके देखा है? नहीं देखा है। कहते कि नेचर है और एक वो है, तो एक प्रकृति है और एक कर्ता है, राइट। तुमने शिवा को देखा होगा, शिवा को तब तांडव करते हैं तो आपने उसका बायां पांव उठा हुआ देखा होगा ऐसे, राइट, ऐसे। इन आवर बॉडी लेफ्ट इज नेचर, राइट इज दैट पुरुषा, द अल्टीमेट वन, द गॉड वन, द ईश्वर जो इससे बाहर है। तो पुरुषा है, ये प्रकृति है, द लेफ्ट वन। इट गेट डिस्ट्रॉयड बट नॉट इट। और जब प्रलय आता है, तांडव होता है, तो ये पांव उठता है, मतलब प्रकृति नाउ डिस्ट्रॉयड, बट पुरुषा विल रिमेन देयर ऑलवेज। क्लियर? सो पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं, एंड अ डे प्रकृति खत्म हो जाती है, पुरुष वहीं खड़ा है, वो फिर प्रकृति बनाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर कहां पे है? मिथ में है। सो मिथ हैव लॉजिकल एक्सप्लेन ऑफ एवरीथिंग। क्यों ये पांव उठाया, क्यों ये पुरुष है, क्यों प्रकृति, एवरीथिंग इज देयर। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी से, व्हाई मिथ persist in a society and why myth are continued, why myth has a motivational force, why myth are there. First thing, they have logical explanation of things. Right? Logical explanation of things. कैसे? जैसे there is a tribe called as Abenaki. Right? A tribe called as Abenaki. In that tribe, these people are dependent on the corn as staple food. These people are dependent on corn as staple food. How corn originated? अब दादाजी कहानी सुना रहे कि बेटा एक टाइम था जब एक बड़ी सिल्की बालों वाली लड़की थी। ठीक है साहब, लड़की थी, तो वो लड़की एक बार एक पर्सन को मिली, तो उसके बड़े सिल्की सिल्की से हेयर थे। तो कहते हैं कि वो जो लड़की थी ना, तो कह रहे हैं कि उसने कहा कि अगर तुम मेरे हमेशा बाल देखना चाहते हो, लाइक इफ यू वांट टू सी माय सिल्की हेयर, तो जब मेरी बॉडी डिसीज हो जाए तब तुम जहां भी देखोगे मेरे बाल देखना, तुम्हें वो बाल दूर से चमकते नजर आएंगे, तो समझ लेना मैं हूं। और वो एक दिन डिसीज होकर बॉडी जमीन में चली गई और वहां से मक्के उगे, और उस मक्के में उसके वो सिल्की सिल्की। सो एबेनाकी के पीपल जहां पर भी वो मक्का देखते हैं, वो उसकी स्टोरी सुनाते हैं कि मक्का जो है वो डिराइव हुआ उस लेडी से, और ये उसकी हमको देन है। राइट? सो मेनी स्टोरीज आर ऑलरेडी देयर। You believe or not doesn't matter. They believe that matters a lot. Right? हम इवोल्यूशन को बिलीव नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना कि एक दिन म्यूटेशन हुआ होगा, हम पैदा हुए होंगे। Scientifically you believe, they believe in their own science. Right? Everyone has their own science, systematic study where they believe. Belief system is very important. Belief system is very important. If you believe, things will happen. Right? So it is all about the belief. They believe. So this is a logical explanation of things. Right? तो उनके लिए कौन है? दूसरा होता है जस्टिफिकेशन, वैलिडेशन। कुछ चीजों को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन के लिए क्या होता है? लाइक एक
आइलैंड है जिसका नाम है सेराम. इट इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया. राइट. वहां पे ट्यूबर्स बहुत होते हैं. आलू, ट्यूबर्स, आलू है जितने भी है. राइट. तो वो ट्यूबर्स बहुत खाते हैं. तो कह रहे जी ट्यूबर्स कैसे वैलिडेट, कैसे यहां पे ट्यूबर्स हो रहे हैं इतने. फिर एक कहानी कि जी अगेन एक लेडी है हैनुविले, राइट, कॉल्ड एज हैनुविले. तो हैनुविले वहां पे आती है तो लोग उसको क्या करते हैं, उसको जला देते हैं. दे गॉट फायर. फायर होकर वो जमीन में घुस जाती है और वहां से ट्यूबर्स पैदा होते हैं. तो ये सब हैनुविले की देन है. नाउ आंसर इज कंप्लीट. आंसर इज yes. Maybe it cannot be a validation for you because you educated by another type of education system. Right? Your education system does not allow these type of things to believe, but their education system allows to accept these sort of belief. Like people of Western world, they do not believe in your stories. वो कहते हैं कैसे नाग का अवतार लक्ष्मण हो सकता है, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार कैसे हो सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि नहीं हो सकता. वैसे नरसिंह कैसे पैदा हो सकते हैं उनके हिसाब से, आधा जानवर आधा मनुष्य कैसे पैदा हो गया. एंड वी बिलीव इन नरसिंह ओनली ना. लाइक यू गो टू द साउथ ना, दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ नरसिंह कि नरसिंह ने मार दिया हिरण्यकश्यप को, मार दिया. अब नरसिंह जी को शांत कौन करे. नहीं, शिव आए, विष्णु आए, किसी से भी शांत नहीं हुए. तो एक नया इनकारनेशन हुआ, सरभा. सरभा आए तो सरभा ने आके और नरसिंह जी को शांत किया. बिल्कुल ठीक है. तो सरभा को किसने शांत किया. फिर वो आए जो सरभा को शांत करने के लिए दो अलग अलग जो हेड के एक अवतार और हुआ, उन्होंने उनको शांत किया. They do believe na? They do believe in that stories. So these all are the myths. As I told you, it all about belief system. So they people believe in this thing. कहां ऐसा हुआ होगा. अब तुम जुड़वा केले नहीं खाते, खा के दिखा दो. घर में अगर जुड़वा केले आ जाए पेड़ में, कोई नहीं खाएगा. आलू पर अगर गणेश जी दिख जाए तो पूजा हो जाएगी भाई साहब. That our belief. We believe in sacred things. हम बरगद की पूजा कर रहे हैं, बड़ की पूजा कर रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं, आम की कर रहे हैं, नीम की कर रहे हैं. हम किसकी पूजा नहीं करते बताओ जरा. तुलसी जी की कर रहे हैं. हम वो सब पूजों की कर रहे हैं, पूजा जो पूजा के लिए है. हमारे तो हर एक एनिमल आपके वर्शिप वाला है. कौन सा नहीं बताओ, नाम बताओ क्या जो नहीं है. पिग. आपको किसने कहा पिग की पूजा नहीं होती है. जरा अवतार देखना. वराह, वराह अवतार. वाइल्ड पिग, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर है. हाँ वाइल्ड बोर है, उसकी पूजा है. आपका कोई जानवर हमने छोड़ा नहीं है. राइट. नेचुरली वी डिस्कस अबाउट नेचुरलिज्म आल्सो. हमारा रिलीजन जो है मिक्सअप ऑफ सो मेनी थिंग्स. ये अलग अलग कर रहे हैं. हम कहते हैं हम सब में है. हम नेचुरलिज्म भी है, हम एनिमिज्म भी है, हम एनिमेटिज्म भी है, हम सेमेनिज्म भी है, हम टोटेमिज्म भी है. हम क्या नहीं है. वी आर एवरीथिंग, वी आर एवरीबडी. Religion is a very complex system, बच्चे. It's all about your belief. We have so many streams under this ocean. बहुत तरह की धाराएं बह रही है. एक धर्म के अंदर ही तुम्हें 100 धाराएं मिल जाएगी. राइट. और उनका कोई अंत नहीं. तो जस्ट अबाउट दिस वन वो बिलीव कर रहे हैं ना. थर्ड जैसे मैंने बात बताया था, मेडिटेशन हो गया. अब मैं क्या कहूं, अब मैं कहूंगा जी इट गिव्स अस डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. किसका. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कौन बता रहा है हमको. मिस बता रहे हैं ना. एंड ऑफ यूनिवर्स कौन बता रहा है, कौन बता रहा है. सी दीज ऑल डिस्क्रिप्शन आर गिवन बाय मिथ्स. These all descriptions are given by myths. Origin of religion, creation, procreation, right? Everything कौन बता रहा है. These myths बता रहे हैं. So myth have this ability to explain, to justify or validate, to describe or finally to heal.
फाइनली 2, ऐसी ऐसी स्टोरीज है, उनके साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी होगा, बुरा हुआ है तो अच्छा भी होगा। So why myth are so popular, myth are validate, myth are part of belief system due to all these qualities. Right? आप हर साल तुलसी माता की शादी करते हैं, किससे करते हो? शालिग्राम क्या है? स्टोन है। और वो कौन है? लाइव है। वो कौन है? शादी कैसे हो रहा है भाई? मिथ है ना। हम कहते हैं ये अवतार था, शालिग्राम जी अवतार थे, शादी हुई, विष्णु जी रूप बन के आ गए, एवरीथिंग वी आर बिलीविंग ना। तो आप मिथ को देखो कितना ज्यादा अपने उसमें है। folk tales, folklores, which are not validated. You need not to validate them through history or through records. Right? सत्युग में राम थे, सत्युग को जरा गिनना, हम कहते उस समय तो मनुष्य नहीं था। अगर हमारा दोनों का सिस्टम मिले तो उस समय मनुष्य नहीं था इनके हिसाब से, तो राम कैसे हो गए? सिस्टम इज देयर ना, बिकॉज आर सिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट टू देयर सिस्टम। ये बात को ध्यान रखना। इसको टाइम डायलेशन सुना है? व्हाट इज टाइम डायलेशन? यस, ब्लैक होल के पास में 2 मिनट 2 दिन के बराबर होता है। राइट? तो हो सकता है कि आपका जो स्वर्ग का कंसेप्ट जो है वो एक ऐसी जगह पर हो जहां पर टाइम डायलेशन हो। कहते हैं आपके ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात में पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है। इट मे बी, यस इट मे बी, बिकॉज यू आर लिविंग इन डिफरेंट टाइम जोन, दे आर लिविंग इन डिफरेंट टाइम जोन। वैलिडेशन तो है, बट थिंग्स आर देयर। सो दीज आर द थिंग्स विच मेक्स दिस मिथ इन दिस वे। हो गया? अब मिथ के बाद में सेकेंड चीज हमारा कौन सा आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर कॉल्ड एज रिचुअल्स। राइट? रिचुअल्स आर रिलेटेड विद द एक्ट विच आर परफॉर्म, and these are ceremonial in nature. So ceremonial performance act, ceremonial performance act, activities which are performed at the time of ceremonies, and these ceremonies are associated with the myths. Right? So rituals are the activities, rituals are the ceremonial performance act, and according to Leach, Edmund Leach, right? What is this? Is to Edmund Leach, ritual is culturally defined behavior which acts as social communication. Right? To Edmund Leach, ritual is defined by culture, defined by culture. So here ritual has functional aspect because it acts, it performs, so it is related to function. So ritual has certain function, rituals are the activities, right? So it is called that it is the part of culture. हमने वर्ड क्या लिया? Culture. Culture means activities, acts, right, which are there to function. So here rituals are culturally defined behavior. It means in different culture there are different type of rituals, and then rituals are defined by the particular culture. So in different culture you have different type of rituals, and these rituals are culturally defined behavior.
साइंस वाइंस कुछ नहीं, क्या है? कल्चरली डिफाइंड बिहेवियर, एंड दैट एक्ट्स एज, it is a social communication, it is a language of society. People communicate through rituals. People get that. वो जो रिचुअल सेरेमनी हो रही है वो सेरेमनी एक्चुअल में एक सोशल कम्युनिकेशन है. एवरीबडी इज टेकिंग पार्ट, दे हैव देयर स्पेसिफिक स्टेटस एंड रोल, एंड दिस स्टेटस एंड रोल दे ऑल आर डिफाइंड विद रिचुअल्स. सो वो एक कम्युनिकेशन है. सो हियर रिचुअल्स आर लाइक सोशल कम्युनिकेशन, लीच बोलता है. अब rituals क्या है? as we discuss, rituals are the ceremonial performance act, certain activities, right, which are performed through ceremonies in different societies, right, and they becomes culturally, and these rituals are very organized, very systematic and defined. इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो डिफाइन नहीं है. Not possible, because rituals are very specific in nature. तो जैसे होना है वैसे ही होना है. होली का दहन दिखा है तो जैसे बनाया जाता है वैसे ही बनाया जाता है. आज गैस के टाइम में भी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, गोबर डालेंगे, उसको पहले पूजा करेंगे, नारियल रखेंगे, बीच में रखेंगे. यस, क्या कोई ऐसा रिचुअल है जो उसके बिना कर दे? नो. रिचुअल्स आर क्वाइट स्पेसिफिक. फ्यूनरल्स इज ए रिचुअल, बर्थ इज ए रिचुअल, मैरिज रिचुअल. तो इसमें स्पेसिफिक देखा होगा, पंडित जी बैठे हैं फेरे हो रहे हैं, या मौलवी जी बैठे हैं निकाह पढ़ रहे हैं, चर्च में गए औत दे रहे हैं, क्या वो घर बैठे कर रहे हैं दूसरे को साइन? नहीं. यस. सो रिचुअल्स आर क्वाइट स्पेसिफिक इन मैनर, वेरी स्पेसिफिक. सो रिचुअल्स क्या है? सो वी हैव द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रिचुअल्स. फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रिचुअल्स. रिचुअल के फंक्शनल एस्पेक्ट है. वो एस्पेक्ट क्या है? सबसे पहले रिचुअल्स के बारे में कौन बोलता है? सबसे पहले बात करता है दरखाइन. टोटेमिज्म. टोटेमिज्म प्रैक्टिसेस, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस. सो टू दरखाइन, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस are the integral part of society, and they are there to unite the society, right? Rituals are there to integrate and unite the society in they makes society integral, right? Because rituals are there, everybody takes part in ritual, and these rituals are specific in nature. For each and every society they have specific, they worship their own totem, so they have specific rituals. So these specific rituals unite or integrate the society. They are the symbols of society, right? And society is expressed through these rituals. Society is expressed through these rituals. दरखाइन बोलता है. तो टोटेमिज्म को माइंड में रख के बोलता है वो कि प्रैक्टिसेस जो टोटेम के लिए होती है. एनुअल फीस्ट हुआ, सब लोगों ने मिलकर उस टोटेम को खाया, राइट? तो वो उनका एक तरीका है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या परफॉर्मेंस होंगे, रिचुअल्स क्या होंगे, हाउ टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग. सो इट इज स्पेसिफिक फॉर अ सोसाइटी. इट इज स्पेसिफिक फॉर अ सोसाइटी विच इज यूनिक, यूनाइट एंड इंटीग्रेट द सोसाइटी. दिस इज बाय दरखाइन. तो इसका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है? किसी भी टोटेम किसके हिसाब से, इसका फंक्शनल एस्पेक्ट है कि ये किसी भी सोसाइटी का स्पेसिफिक नेचर है जो उसको यूनाइट और इंटीग्रेट करता है. और हर सोसाइटी का अपना एक तरीका होता है, मेथड होता है, तरीका. सेकंड आता है इसके बाद, दैट इज कॉल्ड एज Redley Brown. To Redley Brown, rituals are very important for the society. Rituals are very important and crucial for the societies, and these rituals are related with the these are related with the disciplinary mindset. Disciplinary mindset. Disciplinary, to regulate, to control, to measure the societal things.
राइट? रिचुअल्स में हर आदमी का अपना एक परफेक्ट रोल है, और रिचुअल्स में तो ये एक तरह से सोसाइटी को रेगुलेट कर रहा है, मेच्योर कर रहा है, डिसिप्लिन कर रहा है. जैसे रेडक्लिफ ब्राउन टॉक्स अबाउट taboos. Taboos means prohibition, not to do. Taboos are associated with the so in a particular societies, taboos means not to do activities or rituals which are not to do are especially designed to regulate and control the measures, right? And these rituals actually define the line of society, the border of the society. किसके बाहर नहीं, like food taboo, कुछ चीजें आपको नहीं खानी है, राइट? एज के बाहर आपको ये नहीं करना है. Like we have taboos in our societies to related to the menstrual cycle. कि आप इस समय ये कर नहीं सकते, भगवान के पास जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते. शादी के टाइम सर्टेन होते हैं, बच्चे डिलीवरी के टाइम सर्टेन टैबूज होते हैं कि बच्चे के साथ आप यहाँ नहीं जाओगे, बच्चे से आप पहली बार मिलोगे नहीं. So many things are there, and these all systems are made for the sake of protection, for the sake of security, for the sake of regulate, right? And then Radcliffe Brown gives an example of puberty ceremony in Andamanese, right? When a girl attains puberty, तो एक फेस्टिवल होता है, and what this festival says, now you are becoming responsible, right? That shows the transition of life from one stage to another stage. After puberty, now you are more responsible, and this festival related to the fertility, reproduction, and responsibility. So rituals are there to maintain, to integrate the structure of the society, continuity of the society. So taboos and puberty ceremonies की बात करता है, कौन कर रहा है? ब्राउन. अंडमानिस. रेडक्लिफ ब्राउन ने कहां पे काम किया? A&N, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. हाँ होता है, कई जगह होता है बेटा, बहुत जगह फेस्टिवल्स है. प्यूबर्टी में तो लगभग 70% जो अफ्रीकन ट्राइब्स है उनमें भी होता है, बिकॉज इट्स अ स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन अ वुमन गो टू अनदर लेवल ऑफ लाइफ. तो चेंज ऑफ लाइफ स्टेजेस है. When we shall discuss about the rituals, there are two types of rituals. One is called the rituals of life crisis, and second called as rituals of intensification. ये लीच दो तरह के बोलता है, confirmatory and pious. तो that we shall discuss about these things. So puberty ceremony transition. तीसरा पर्सन जो आता है, that is very important, called as Malinowski. Right? ये किस किस बात का? रिचुअल्स. व्हाई रिचुअल्स देयर? फर्स्ट, फॉर इंटीग्रिटी, राइट? सेकंड, वही मोटिवेशनल फोर्स. थर्ड, इन ग्रीफ एंड डेंजर. रिचुअल्स ऑल्सो सपोर्ट द पीपल, encourage them, encourage them. In the time of grief, in the time of danger, like मैंने बात की थी वॉयजेज की, कि यात्रा पे जा रहे हैं, बहुत बड़ा, जितनी बड़ा डर उतनी बड़ी सेरेमनी, उतना बड़ा रिचुअल. सो टू Malinowski, these rituals, performances actually integrate the society. These have a function for the psychological motivation, against the frustration, against the fear, against the anxiety, against the grief. तो इनके लिए, Malinowski के लिए रिचुअल्स एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, जो साइकोलॉजिकल नीड पूरी कर रहा है, ग्रीफ और पेन में पूरी कर रहा है, डेंजर में पूरी कर रहा है. एंड एक्चुअली इट्स एन इको ऑफ सोसाइटी. सोसाइटल वांट्स एंड मीन्स की बात करते हैं हम. क्योंकि फंक्शनल एस्पेक्ट है ना,
तो नीड की बात करेगा। कहता है वेलनेस की नीड क्या बताता है, वो कहता है जब ग्रीफ हो, जब डेंजर हो, राइट, उस समय मोटिवेट कौन करेगा, यूनाइट कौन करेगा, साइकोलॉजिकल फियर को कौन गेट इट करेगा, कौन करेगा, रिचुअल्स। और रिचुअल्स किस पे बेस्ड है, मिथ पे, राइट। अब पहले कौन बात नहीं, दोनों होते हैं, मिथ है रिचुअल्स है। सो दीज आर दी रिचुअल्स। अब कहते हैं रिचुअल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। टाइप रिचुअल वी टॉक अबाउट, रिचुअल्स आर पॉजिटिव, रिचुअल्स आर नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या करना है, नेगेटिव में क्या नहीं, यानी कि राइट, positive rituals are there in life, right, which are there to perform, some which should not be performed, maybe at a time or maybe never. So these are called the negative rituals. या किस तरह का मैजिक, ब्लैक मैजिक नहीं करना है। सो पॉजिटिव नेगेटिव ब्लैक मैजिक में रिचुअल्स है, बट नहीं करना है। नाउ एडमंड लीच बोलता है, टू एडमंड लीच देयर आर टू टाइप ऑफ रिचुअल्स, right, one is called as confirmatory and second is called as pious, right, pious, right। और वैसे वी डिवाइड, जैसे गैनेप बोलता है, दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज क्राइसिस और गैनेप। Von de Gennep, Von de Gennep, a Frenchman, writes the passage, वर्ड देता है writes the passage, means there are certain stages in life where life transition from one stage to another. These transition are called as life crisis transition, and there some rituals are performed which is called the rites the passage, means from one to another, they work as a passage. हम जोजिला पास पढ़ते हैं, क्या करता है ये, दो अलग अलग को बीच में जोड़ता है। So these are called the passage. So in life between two different stages there are some passages. In that passages what rituals are performed called as rites the passages. इसने ऑफ की जगह बढ़ लिया था rites DED, फ्रेंचमैन है तो rites the passage. So these are those passages, rituals which are performed at a time of life crisis event, when life gets changed. शादी से पहले शादी के बाद, जन्म से पहले जन्म के बाद, मृत्यु से पहले मृत्यु के, right? So birth, marriage, death. So these are those time, जैसे हमारे यहाँ पे like in Indian mythology, in our religious practices, we have a उपनयन संस्कारा. वो क्या करता है? द्विजा. जब when a person convert into वर्णा, जब आपको एक सेकेंड थर्ड बनाया गया और उस उपनयन संस्कार के बाद आप शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाओगे और वहां आपका वर्ण है, ब्राह्मण है तो ये, क्षत्रिय तो वैश्य तो ये. सो इट कन्वर्ट्स यू फ्रॉम वन स्टेज ऑफ चाइल्ड टू अ स्टूडेंट. फिर एक समावर्तना में कहता है नाउ यू कंप्लीटेड योर नॉलेज, अब कब जाना, गृहस्थ आश्रम में. तो मैरिज सेरेमनी होती है फिर हमारे यहां पे, और फिर मैरिज के बाद लास्ट का डेथ सेरेमनी. सो तीन तो ऐसी है, चाइल्ड, बर्थ, मैरिज एंड डेथ, जो हमेशा हर किसी भी इन एनी सोसाइटी, इन एनी रिलीजन, दीज थ्री स्टेजेस आर द पार्ट ऑफ रिचुअल्स, राइट. तो
वन बाई वन करते, पहले कंफर्मेटरी या राइट्स दी पैसेज की बात करते, क्या बात करते हैं, कंफर्मेटरी और राइट्स दी पैसेज। सो सबसे पहले बोल रहा है बर्नार्ड, एलन बर्नार्ड। To Alan Bernard, there are 3 stages of life called as life crisis stages, and these stages are to Alan Bernard, there are 3 stages of life which is called as life crisis stages. In these stages, rituals are performed in each and every religion or society, which we are the ancient one, the primary, the simple society, complex society. हर जगह रिलीजन में होने हैं. So these are the life crisis stages. Life crisis stages. And rituals are always performed in each and every society. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, प्राइमरी सोसाइटी, सब जगह होता है. शादी के तरीके हैं, बर्थ के हैं, अपने अपने तरीके से एडमिशन. सो कौन बोल रहा है? बर्नार्ड. क्लियर? रिचुअल्स आर ऑलवेज देयर बिकॉज दीज आर द लाइफ, द ट्रांजिशन फेजेस ऑफ लाइफ, राइट? व्हाट? ट्रांजिशन फेजेस ऑफ लाइफ. बिगिनिंग ऑफ लाइफ, हाउसहोल्ड, एंड ऑफ लाइफ. So these are the transition stages of life, and these times is called the life crisis stages. So these transition phases are called as life crisis phases. In these phases, rituals are always there. Right? उसके बाद आता है जिसका मैंने नाम दिया था, नाम देता है वॉन डी गेनेप. अब गेनेप साहब क्या है? फॉर दीज लाइफ क्राइसिस रिचुअल्स के लिए वो एक नाम लेके आता है. उस नाम को एक क्या बोलता है? क्या बोला? वॉन गेनेप conceptualized these life crisis rituals as rites de passages. Right? Von de Gennep conceptualized these life crisis rituals as rites de passages. Clear? और इसके लिए हमने हिंदी में क्या किया? इसकी जगह क्या वर्ड लिख दिया? और इसको हमारे इंडियन मैथोलॉजी बोलते हैं संस्कारा. क्या बोलते हैं? संस्कारा. वी हैव 16 संस्कार, 16 संस्कारा, वो सब इससे रिलेटेड है. दिस कॉल्ड राइट्स ऑफ पैसेजेस. राइट्स दी पैसेज. वैसे हमारे पास कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है. राइट्स दी पैसेज तो हमने डी हटा के ऑफ लिख दिया है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वॉन डी गेनेप, these right de passage have 3 different stages when it is performed. Say somebody is getting married. Somebody is getting married. तो सबसे पहले क्या होगा? A process of separation. That person will be get separated from the rest of the society. Whether it is bride or groom, now they will get separated from that particular societal group. उनको घर के अंदर बिठा दिया गया है. इसके दिए आज तो पीले चावल हो गए, आज के बाद तुम घर से बाहर किसी भी सोशल एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बनोगे. इट मीन्स नाउ यू आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम दी सोसाइटी, बिकॉज नाउ इट इज द फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज ऑफ लाइफ टू another phase of life. So first process क्या होता है? Process of separation. That person get separated from the society, societal activities. Second is called as elimination. Elimination means there is a process when person is situated between 2 lines. Neither you are here nor you are there. At the middle. Elimination is process where a person stands between 2 stages. Right? Living
द लास्ट वन एंटरिंग द न्यू वन. बिटवीन का स्टेज को क्या वर्ड दिया हमने? लिमिनेशन. बिकॉज दैट पर्सन इज प्रिपेयरिंग नाउ. फर्स्ट ही गॉट सेपरेटेड, नाउ दैट पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वन, लिविंग द लास्ट वन एंड प्रिपेयरिंग फॉर. जैसे लड़की को मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, ये सब क्या है? नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर लिविंग दी. नाउ शी इज नो मोर अ पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी, नाउ शी इज एंटरिंग द न्यू सोसाइटी. तो जो बीच का स्टेज है ना, उसको बोलते हैं लिमिनेशन, जिसको आप हल्दी की, कुमकुम की, हाथ धाम की रस्म करते हैं. वो सारी रस्में किस चीज के लिए है? लिमिनेशन का पार्ट है. सेपरेशन में क्या किया? तुम घर वालों से सबसे अलग हो गए. लिमिनेशन में नाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट वन, यू आर इन बिटवीन दैट. एंड लास्ट इज अगेन, दिस इज कॉल्ड एज incorporation. Now again you are the part of society with a new identity, with a new life, with a new thing. तो again part of society, but इस बार एक नई identity के साथ. Now you have new thing. So these three stages are there: separation, limitation, elimination and incorporation. Right? पहले अलग किया, फिर प्रिपेयर किया, और फिर नेक्स्ट में आके तुम दोबारा सोसाइटी के पार्ट बन गए. पहले आपको सेपरेट किया गया, प्रिपेयर किया गया, और नए रूप के रूप में आपको उतार दिया गया है. तो मैरिज को दिमाग में रखना. शादी से पहले घर से बाहर निकलना बंद, लोगों से मिलना बंद. उसके बाद में दूसरी स्टेज एलिमिनेशन, मेहंदी हल्दी सब लगाई, घर में शादी हो गई, अब जाइए नए घर में. नाउ यू आर विद द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू लाइफ, न्यू थिंग्स. सेम एज द प्यूबर्टी फेस्टिवल. पहले सबसे अलग कर दिया, फिर फेस्टिवल किया गया, फिर जाओ, आज के बाद तुम वो पुरानी लड़की नहीं रही. Now you are mature girl. So behave like a mature girl. This is called the rite of the passage. अगर इंग्लिश में बोलूं तो सेपरेशन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन. क्या बोला मैंने? सेपरेशन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन. So last stages is returning back to the society, but with the new avatara. So this is the rite of the passage. क्लियर? ये वो चीजें हैं जो लगातार हो रही है. एंड एवरीबडी इज टेकिंग पार्ट. रिचुअल्स आर दोज वेयर एवरीबडी इज टेकिंग पार्ट. अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. तो ये राइट दी पैसेजेस है. अब रिचुअल्स, ये तो किसने कहा? वॉन डी गेनप का कंसेप्ट है राइट दी पैसेजेस. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं वे रिचुअल्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ द सिंपलर सोसाइटी. उसमें कैसे? लाइक वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ वन इज अबाउट द टेलेंसी. Second is about Tikopia. Third is about Swaji. Right? Rituals. How? Rituals. क्योंकि रिचुअल्स का पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूरा के पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. अकेला रिचुअल्स खींचता है, ये बहुत सोच के करना. राइट? राइट दी पैसेज सीधा पूछ लेते 10 नंबर का. राइट दी पैसेज, ब्रांडी गनेप. राइट? ये है 3 ट्राइब्स जिसमें तुम्हें रिचुअल के एग्जांपल्स दे रहा हूं. राइट? एग्जांपल्स ऑफ रिचुअल्स. हाउ रिचुअल्स आर द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ए सोसाइटी. हाउ पीपल टेक पार्ट इन रिचुअल्स. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स. तो हम कहते हैं रिचुअल्स है कहां है भाई? राइट दी पैसेज. तुमने कोई एग्जांपल दिया है क्या? हम दे रहे हैं ना. देखो टेलेंसी में क्या होता है. इन टेलेंसी ट्राइब, राइट, ये इसमें 2 तरह के लोग हैं. 2 inhabitants are there. One the most ancient ones which call themselves as Teli Islanders. This island जहां पर टेलेंसीज रह रही है, घाना. कौन सा एरिया है? घाना. राइट? टेलेंसी आइलैंडर्स, टेलेंसी. राइट? टेली आइलैंडर्स. और सेकंड जो उनके होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नामूस. In Telensi tribe, there are two type of inhabitants. One which believe that they came first, right? And these are the original inhabitants. Those people are called Teli Islanders. Second, which came later.
and these people are called as namus, right? Called as namus. अब इनमें क्या होता है मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूं. They have an annual festival because this is agriculture tribe. तो they have annual festival. उसमें क्या है? What Teli Islanders believes that they are the descendant of earth. So crop होने की वजह कौन है? वो है. So all the harvesting जो है वो सब किसकी वजह होती है? किसकी तरह से होती है? So rituals performed by Teli Islanders are there for the harvesting, for the crop, for the fertility of earth. Namus believes that they belong to the rainy god, right? So the rain happens due to these people. So now both take part in rituals, right? For a good harvest season in the next year. तो दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस हुआ कि ये कहेंगे जी दिन की बारिश लाएंगे तो हमें, ये कहेंगे जी जो धरती से जो होगा वो हमारा है. तो दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया. So this is the significance of rituals in a society where everybody is participating, and that shows the significance of both inhabitants. Clear? ये इनमें है. टिकोमेम क्या होता है? 4 चीफ्स होते हैं और दे 4 चारों अपनी अपनी तरह से रिचुअल्स लेके आते हैं और इस सोसाइटी को यूनाइट करने के लिए खड़े होते हैं. देयर आर 4 chieftains in Tikopia and they all take part in festivals. They all participate in festival, right? With their own significance. अगर ये रिचुअल नहीं होता तो चारों अलग अलग होते हैं, चारों का सिग्निफिकेंस नहीं होता. ये बता दे रिचुअल्स कितने सिग्निफाइड है. इन स्वाजी में क्या है? वी थॉट सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट? तो उनमें एक फ्रूट फेस्टिवल होता है कॉल्ड इक्वाला. एंड देयर इट्स अ फेस्टिवल ऑफ ट्रायम्फ. It's a festival which imitates the victory of king over enemies. वो imitate करते हैं, नकल करते हैं, मतलब नकली enemies बनाते हैं और राजा उस पर जीत रहा है. A symbolism, right? That solidified the kingship of that particular king, right? ये है ये. So how rituals are important for the simpler societies? राइट? ये यहां पे हार्वेस्टिंग के लिए, ये यहां पे साथ रहने के लिए, ये यहां पे एज ए विक्टोरियस किंग के लिए, किंगशिप को सॉलिडिफाई करने के लिए ये जरूरी है. राइट? सो दीज आर द रिचुअल्स. सो हमने पढ़ा राइट्स द पैसेज, सम एग्जांपल्स ऑफ रिचुअल्स. अब सेकंड आता है राइट्स ऑफ इंटेंसिफिकेशन. राइट्स ऑफ कब होता है? इन ग्रीफ, इन डेंजर. इन ग्रीफ, इन डेंजर, इन लॉस. राइट्स और रिचुअल्स. राइट्स मतलब रिचुअल्स. रिचुअल्स which are to be performed at the time of danger, grief or loss are called as rites of intensification. तो इसमें फ्यूनरल राइट्स आ गए. कौन सा राइट्स आ गए? फ्यूनरल राइट्स. जैसे हमने डिस्कस किया था ना, बाली द्वीप पे जितनी बड़ी फायर होगी, राइट? तो फ्यूनरल पायर जो आ गई इन बाली, किस पे बात की हमने? फ्यूनरल पायर. एंड व्हाई इट हैपेंस? हाउ टू कन्वर्ट अ ग्रीफ, अ सॉरो इनटू अ जॉयस फेस्टिवल टू ओवरकम द ग्रीफ. These rituals are there. कि आप नाच गाने बजाने के साथ किसी की अर्थी निकाल रहे हैं. देखा होगा कई बार तुमने, आगे बैंड बाजे चल रहे हैं. आपने कई जगह देखा को डांस करते हुए जाता है. डांसिंग कॉफिन, वहां वो कॉफिन उठाए वो डांस कर रहे हैं. यस, वो होता है ना. सो वाई दीज आर? बिकॉज वाई सो टू ओवरकम. देखो, लॉस हैज ऑलरेडी बीन डन.
Loss has already been done. Now how to overcome this loss? Now this is societal response to overcome that we are here. So this is about that, to feel a person about the society, about the people, about being a part of society, that we people are still with you. So these rites of intensification are associated with this, that we are with you. At the time of grief, at time of danger, at the time we are with you. So these rituals are performed at the time of intensification, where grief is there, sorrow is there. So people, what happens here are us, at that time people gather, 10 दिन बैठते हैं, शोक मनाते हैं, लोग मिलने आते हैं, उसके बाद मृत्यु भोज होता है. Why so? देखो भोज तो गलत है, बट लोगों का मिलना बहुत सही है, because they feel that we are always together. So that helps that family to overcome that grief and back to the normal life. So this is the thing, ये जो राइज ऑफ इंटेंसिफिकेशन, राइट. अब जैसे हमने बात की, तुम्हारे पास 2 टॉपिक आए, लाइफ क्राइसिस राइट्स. सेकंड आए, 2 टुकड़े किए हमने, एक था लाइफ क्राइसिस राइट्स, एक राइट्स ऑफ इंटेंसिफिकेशन. क्लियर? 2 की हमने बात की. एक हमने कहा 2 तरह के राइट होते हैं, कन्फर्मेटरी, और दूसरे कौन से बताए थे? पायोवियस. कन्फर्मेटरी में कौन सा एग्जांपल दिए थे? मैंने 3 एग्जांपल दिए तुमको, टिकोपिया और टेलेंसी और स्वाजी. कन्फर्मेटरी राइट्स आर दोज राइट्स विच आर द लाइफ क्राइसिस स्टेज, फेस्टिवल्स, फेस्ट, पीपल इकट्ठा होते हैं, यूनाइट होते हैं, मनाते हैं, वो आ गया. अब दूसरा होता है पायोवियस. पायोवियस किस तरह की चीजें होती है? जैसे मैंने कहा, आपकी जैसे हमने बात की राइट्स ऑफ इंटेंसिफिकेशन का, राइट्स ऑफ इंटेंसिफिकेशन का दूसरा नाम होता है पायोवियस. राइट? ये वो टाइम है जब लोगों को हीलिंग की जरूरत है, वो ग्रीफ में है, पेन में. एक तो आपने सोसाइटल फॉर्म में कर दिया, पर अगर आदमी मान लो किसी को लगा मेरे पे तो प्रेत चढ़ गया, दुख ऐसा है जो लोगों से पार नहीं पड़ेगा, मैं लगातार बीमार हो रहा हूं, आई एम सिक, आई एम डाइंग, लगता है मेरे पे किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, प्रॉब्लम हो गई. तब यहां पे कौन आएंगे? यहां पे 2 लोग आएंगे. कौन आएगा? एक आएगा now the diviners and spirit mediators will come to overcome that person from this danger or grief. क्योंकि उसको लगता है कि मेरे साथ जो है वो इविल स्पिरिट्स की वजह से हुआ है. किसकी वजह से हुआ है? इविल स्पिरिट्स की वजह से हुआ है. तो नाउ इन पायोवियस टाइप ऑफ राइट्स अ मेजर रोल इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस पीपल. अब स्पिरिट मीडिएटर्स क्या करते हैं? वो आत्माओं से बात करते हैं और कहते हैं जी तेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, मुझे इसने ये कहा कि जी मेरा घर से चोरी होगी. कौन हो सकता है? कि लाल रंग के कपड़े पहन के आई थी, वैसे ऐसे थे, उसने ये पहना था, अभी से ज्यादा हम नहीं जानते. राइट? दे नेवर टेल नेम. वो कभी तुमको नाम नहीं बताएगा, वो कभी तुम घर नहीं बताओ, तुमको बताएगा कि लाल कपड़े पहनने में आई थी, उसने ऐसे ऐसे किया, जी मेरे घर के आगे काले काले उड़द मिले हैं, मूंग मिला है, ये मिला, लाल कपड़ा मिला है, क्या करूं कि तेरे घर पे तो टोना हुआ है, तो क्या करें, कैसा कर, ये कर ले. राइट? सो देयर विद समथिंग विच इज बियॉन्ड थिंग्स. तो वहां पे कौन आते हैं? डिविनर्स कौन है? जिनके अंदर आत्माएं आती है. और स्पिरिट मीडिएटर कौन होता है? जो बात करते हैं, जिनके अंदर नहीं आती. तो वन इज कॉल्ड स्पिरिट मीडिएटर्स, जो आत्माओं से बात करते हैं. और एक होता है डिविनर्स, जिनके अंदर खुद देवता आते हैं, भगवान आते हैं और वो बोलते हैं. कुछ ज्यादा अगर आपको फील करना है तो मेहंदीपुर बालाजी पास में ही है, जाके फील कीजिए. और ज्यादा फील करना है तो शाम को 6 बजे बाद भानगढ़ किले में जाइए, अच्छा फील होता है. सही बात. वहां मैंने कहा अगर अच्छा फील करना है, बहुत अच्छा फील करना है तो भानगढ़ में जाइए रात को 8-9 बजे, बढ़िया हवा में उड़ोगे. हाँ नहीं मिलते, वहां लिखा है, साहब मैंने उसमें साफ लिखा है कि आपको शाम को 5 बजे बाद अलाउड नहीं है. आप पीपल बिलीव बट डू नॉट बिलीव. हाँ जी बिल्कुल. और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं वो. अब एक अपने ठेठ गांव की और तमिल बोल रही है, एकड़ है, एकड़ है. आपके पांव हिल जाए तो मन लोहे के बन जाते हैं, उस समय हिलते ही नहीं, ऐसे खड़े रहते हो आप. It happens. So spirit mediators, diviners are also in the pivot. So as we discuss, rituals are rituals.
and rituals performed in two different stages. When there are rituals in the life-changing stages or life crisis stages. There, second, when you are in grief and danger, right? तो उसको हमने दो पार्ट किया, एक को हमने कहा लाइफ क्राइसिस या कंफर्मेटरी, दूसरे हो गए पायोवियस और राइट दी इंटेंसिफिकेशन. तो दीज आर द रिचुअल्स जो हमने पढ़ना है, राइट? और पहले हम किसका करेंगे, व्हाट आर द रिचुअल्स, व्हाट इज रिचुअल, देन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रिचुअल्स, पॉजिटिव नेगेटिव रिचुअल्स, देन रिचुअल्स टाइप्स. तो उसमें हमने पहले क्या किया, द राइट्स रिचुअल्स, लाइफ क्राइसिस रिचुअल्स में पहले कौन करा, एलन बर्नार्ड. 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ विच आर वेरी क्रूशियल, हर सोसाइटी में इनके लिए राइट्स है. उसके बाद वॉन गेनेप was the first person which give the name these rituals called rite de passage. उसके 3 स्टेजेस है, सेपरेशन, लिमिनेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, राइट? दीज वर द थिंग्स एंड रिचुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इफ वी टॉक अबाउट द लीच ने क्या कहा, देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स, confirmatory and piovious. In confirmatory rituals everybody takes part, very important, like rituals हमने बताया टिकोपिया, स्वाजी and these. Piovious which are in grief danger, there you need spirit meditators and diviners. हो गया. एक होता है राइट ऑफ इंटेंसिफिकेशन, राइट? बात की हमने, इंटेंसिफिकेशन में पायोवियस को डालोगे तो भी चलेगा. जो कंफर्मेटरी है उसमें पहले राइट डी पैसेज का लिख दिया, फिर एग्जांपल लिख दिए, फिर लेकर आए कौन से, राइट ऑफ इंटेंसिफिकेशन. पहले एग्जांपल लिख दिए, फिर दे आर कॉल्ड एज पायोवियस ऑल्सो. और उस समय किसकी जरूरत पड़ेगी तुमको, तो पहले राइट ऑफ इंटेंसिफिकेशन में क्या लिखना है, इंडोनेशिया, बाली, इकट्ठा, गैदरिंग. दूसरा लिखना है इफ दे आर नॉट एसोसिएटेड विद दिस लाइफ, मे बी स्पिरिट बिलीफ. तब कौन आता है, डिविनर्स आते हैं और स्पिरिट मेडिटेटर्स आता है. तो ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट. दीज आर कॉल्ड द रिचुअल्स. अब हमारे पास जो टॉपिक बचता है, दिस इज ऑफ शैमनिज्म, सॉर्सर्स एंड विचक्राफ्ट और प्रीस्ट. तो पहले किसको पकड़ते हैं, जो सबसे प्यारा है, यस, शैमनिज्म. समन्स, शैमनिज्म नहीं है, समन्स. शैमनिज्म तो पार्ट हो गया. अब हमें क्या पकड़ना है, रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स. क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स. तो प्रैक्टिशनर में कौन पहले आता है, समन्स. समन्स कौन है, समन्स कौन है, पीपल विद स्पेसिफिक people of a society which have specific status, having a connection with supernatural world. And are oftenly attain the stage of trance. ट्रांस समझते हो, वो उसमें चले गए, एकदम बेहोश हो गए हैं, कुछ पता नहीं, आते थे तो पुतले ऊपर चढ़ गए, ये टेढ़े हो गए. Oftenly attain the state of trance. ट्रांस लाइफ होती है ना, लाइफ आफ्टर डेथ. तो जो दूसरे हम कहते हैं स्टेज की लाइफ, जिसको ट्रांस लाइफ, दिस इज सिस लाइफ, दैट इज ट्रांस लाइफ. तो वो ट्रांस में चले जाते हैं, राइट? ये है नॉट मनाली ट्रेंस, नॉट मनाली ट्रेंस, नो कसोली ट्रेंस. हाँ, पर वो नहीं है ये वो नहीं है. और ये पीपल सब यूज करते हैं. दे गो टू द ट्रांस स्टेज, दे मीडिएट, दे make harsh exercises, physical exercises, harsh physical exercises. They often go trance and they consume all type of weeds. वो सब लेते हैं. तो ये जो है ये समन्स है. एंड समन्स एक्चुअली वर्क्स एज हीलर, डॉक्टर्स, राइट, मीडिएटर्स, diviners for the simple societies. In simple society, these people are worked as healers, doctors, mediators, diviners, right? Sometimes these people are called as witch doctors also. Sometimes because they people are very much associated with the witch.
spirits. So sometimes they are called as witch doctors also. कि इन्होंने वश में किया होता है स्पिरिट्स को, विचेज को, तो ये आपका ढंग से इलाज कर सकते हैं. So shaman is a very prominent person in a simple society which control the extraterrestrial forces, mediator, diviners, a healer and doctors and foretellers also. Foretellers also. बीमारी ठीक करने वाला. भाई आपको प्रॉब्लम होगी तो जड़ी बूटी लगा दी, रब कर दिया, फोटेल में बता दिया भाई फला फला ने किया. सो दे हैव एवरीथिंग, राइट. एंड देयर आर टू टाइप ऑफ समन्स. वन इज कॉल्ड इमोशनल समन एंड सेकंड इज स्टैटिक समन. इमोशनल कौन? जो टेढ़ा हो गया, जैसे कोई चीज अंदर आई उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए, फिजिकली डिसमॉर्फ हो गया, पुतलियां बाहर निकल गई, जीभ बाहर लटक गई, right? They oftenly go to the trance state, like summon of Joe Wansi. Summon of, if I talk about the emotional summon, तो इमोशनल कौन है? एक तो अपना साइबेरियन, दूसरा जो वांसी. ये इमोशनल समन है. शरीर पूरा कांपेगा, धड़ कांपेगा, जमीन पे गिर गए हैं, पागल हो गए हैं, मुंह से झाग निकल रहे हैं, आंखें लटक के बाहर आ गई है. दिस इमोशनल वन, राइट? दिस हैपेंस. अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर फ्रॉम द अदर बिलीफ सिस्टम, दे आर फ्रॉम अदर बिलीफ सिस्टम. बिल्कुल आते हैं. मैं ये कह रहा हूं दो तरह के होते हैं. एक तो हो गई इमोशनल समन, सेकंड द स्टडी समन. सेकंड वन है रेडी, study, go to study summons. In North America, the California summons. They do not change their texture, they do not become dysmorphic, do not get emotional. सीधी आपसे बात करेंगे, आपको बता दिया ये हो रहा है, ये हो रहा है. वहां पर तो वो पूरे, पहले उनको संभालो. North American tribes, Californian summons, these are the stated summons, right? So these are the summons, right? Summons, जिनको तुम ओझा भी कह सकते हो थोड़ी बातों में. ओझा, तांत्रिक नहीं, ओझा, तांत्रिक सॉर्सर्स. समन एक पुरोहित से भी बड़ी पार्ट है, जो थोड़ा बहुत देवता भी जानता है, अपना भी जानता है, ट्रांस भी जानता है, हिलर भी जानता है, बीच भी डॉक्टर भी जानता है, सब कुछ जानता है. तो डॉक्टर भी है, हिलर भी है, मीटर भी है, डिविनर्स भी है, सब कुछ है वो. प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ अ, इसी पे बना सेमेनिज्म, वर्शिप ऑफ समन्स, बिकॉज दे आर द मीडिएटर्स बिटवीन गॉड एंड अ पर्सन. सो दे आर ऑफनली वर्शिप्ड बाय द होल सोसाइटी. और वो ट्रांस रहते हैं एंड दे नेवर गेट मैरिड. दे नेवर गेट मैरिड. ये शक्तियां एक से दूसरे में जाती है, वो कहते हैं ये इनहेरेंट नहीं होती है, और जिनमें इनहेरेंट होती है उनमें कहते हैं बेटे से बेटा ही समन बनेगा. देयर आर टू टाइप. इफ दे गेट मैरिड तो इनहेरेंट होगी, इफ दे डोंट गेट मैरिड तो नहीं. ये होता है. कौन? गया, थोड़ी देर बाद आएगा. मैं सोच के नहीं बोलता, जो यहां होता है वो बोलता हूं. सेकंड आते हैं जिसको हमारे यहां भी बड़े अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं. दीज आर द प्रीस्ट, religious leader, right? Religious leader, religious teacher, religious leader, religious teacher, right? Propagator. They have a high prestige and status in society. They often related with the religious practices, belief and teaching.
and they are generally believed as a mediator between God and a common man. But they do not possess those extraterrestrial power. No. They do not get to translate. They are just religious teachers, leaders. And they are called as Mullah, Maulvi, Imam, Father. Right. मुजाहिदीन नहीं, इसे मुजाहिदीन तो उसमें आ जाएगा फिर वॉरियर में. हाँ, पंडित मौलवी मुल्ला इमाम. राइट. पंडित मौलवी मुल्ला जी इमाम एंड फादर. दीज ऑल आर दिस. तो ये प्रीस्ट सब में है. Where there is hierarchy in society, always the priest will be there. Mediating, always priest will be there. Right? तो priest बहुत prominent place है. जैसे पहले पुरोहित हुआ करते थे यज्ञों में. So पुरोहिताज. So though all are here. जितना hierarchy society है, जितनी society orthodoxy है, उतना ही priest का position बड़ा होगा. चलाने वाला, धर्म को आगे ले जाने वाला. Then it's come to sorcery, जादूगर, तांत्रिक, sorcerers. These are those people which are related to the evil practices. Evil practices and oftenly perform magic. And evil practices. These are called the sorcerers. They are the masters of magic. Right? They possess the control over the natural powers. Right? They believe in the manifestation of power. We believe in the डिवोशन टू द पावर, देन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर. वो मैनिपुलेट करते हैं पावर को, हम उस पर बिलीव करते हैं, डिवोट करते हैं. सो वी आर द डिवोशनल पीपल. दे मैनिपुलेट द पावर, दे बिलीव इन द मैनिपुलेशन ऑफ पावर. सो ये सोर्सेस है. सो दे आर, यहां करेंगे, दे आर ऑफनली एसोसिएटेड विद द इविल प्रैक्टिसेस. राइट. प्रैक्टिसेस विच आर नॉट रिगार्डेड एज गुड प्रैक्टिसेस फॉर द सोसाइटीज. राइट. They oftenly practices the magic, right? And they believe in manipulation of power. तो ये sorcerers है. तो sorcerers की कोई बहुत अच्छी पहचान नहीं है. और sorcerers से मिलना हो तो आपको पता ही, हैरी पॉटर, find so many sorcerers there. हिंदी फिल्म नहीं ना, हरिपुत्र. अगर आपके पास में पेशेंस को चेक करना हो, पिक्चर को देखने के लिए बताऊंगा. जैसे हरिपुत्र देखो, यू विल चेक योर पेशेंस. आप कितनी देर तक मूवी को झेल सकते हैं, लेकिन दैट यू नीड टू बिलीव इट. जो देसी वर्जन बने हैं ना, उनको भी देखा करो. आपको लगेगा कि मेरे में कितना पेशेंस है, कि मैंने टीवी भी नहीं तोड़ी और मैंने 3 घंटे देख भी ली और मैं वैसे ही उठ और गया वापस. अ प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेशन एंड इनकॉर्पोरेशन. एक ही बार में राइट डी पेसेज पूरा हो जाएगा तुम्हारा. हाउ यू सेपरेट फ्रॉम द वर्ड, हाउ यू कम बिटवीन 2 स्टेजेस, मरूं कि ना मरूं, एंड फाइनली यू कम आउट. सो सोर्स. एंड इसके बाद में बड़ा टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड एज यस विचक्राफ्ट्स. Yeah, witch hunting is already related to this. Witchcraft is based on the study made by Evans Pritchard on Azande. So this is about the Evans Pritchard, right? Evans Pritchard ने उस पर एक स्टडी की थी अजांडे पे, राइट? अजांडे को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है? ये भी अजांडे ही है, राइट? एंड दिस वाज, ये स्टडी किस पे थी? अबाउट द विचक्राफ्ट इन अजांडे. विचक्राफ्ट इन अजांडे.
Witchcraft is associated with the witches, which possesses the evil powers. Witchcraft is associated with the witches, which possesses evil powers to harm others. These are oftenly regarded as anti-social elements, which harms the society and societal elements. Like I'm going to give an example. एक ट्राइब है जिसका नाम है, तुमने इसका नाम सुना होगा, आईबीबो। एक कंपनी भी है, हाँ एक्चुअली ट्राइब है। लोग कहां से नाम लेकर आते हैं, देखो आईबीबो इज एक्चुअली ट्राइब। So in this tribe, what people believe that what witches do, they oftenly takes your soul out, right, and put it into animals. तुम्हारी आत्मा निकाल के पशु में डाल दी, क्या करे, पशु को खा जाएंगे, तुम मर जाओगे. Now what will happen if they are going to torture that particular animal? Who will get tortured? Yes. If they will torture that animal, हाँ, तो तोते को मरोड़ दूं तो? Yes. तुमने आतंकताई 5 बार देखी है, वो भी जितेंद्र वाली. हाँ देखी है, नहीं देखी है, तुम्हारी आंखों में अभी भी तोता घुसा हुआ है. दूसरा तुमने पाताल भैरवी देखी है, देखी पाताल भैरवी जितेंद्र वाली. इन दोनों में तोते में जान थी, नहीं उसकी दाढ़ी में जान थी, उसमें दाढ़ी में जान थी. हाँ जी, मुझे समझ में आ गया, तोते में जान आते, आतिम था. So I am telling you the truth. So IBO people believe that what the witches do, they take their soul and put it into animals. Either they eat the animals, torture animals, right, or kiss the animal, and they control your soul. And with that, what will happen? A person will get die, or will get sick. अगर वो torture करेंगे तो sick हो जाओगे भयंकर रूप से, और अगर खा गए तो मर जाओगे. And your soul will be controlled by that particular witch. So IBO people believe in witches, and to them, these witches takes the soul out from the body of a man and put them into animal. And sickness and death of a person is due to this soul transfer. By torturing or killing the animal, right? Zande people क्या believe करते हैं? Witches are very powerful, right? वो क्या करती है? Even लोगों के बच्चे उठा लेती है, लोगों को खा जाती है. जो suicide, unnatural death and event happens with person is due to these witches. Unnatural, right? And what they believe that these witches the witches have ability to change their life, right? Change their body from an animal to cat, right? तो रात में ये बिल्ली बन जाती है, दिन में एनिमल बन जाती है. And they oftenly visit. हमारे यहाँ भी मानते बात, मैं आपको बता दूं कि बिल्ली आती है, बिल्ली बन के आती है. अब अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत रो रहा है, कहता है इसमें चुड़ैल के साथ हो गया, तो काले डोरे बांधते लड़के के, पैदा होती देख लेना लड़की के दोनों हाथों में, दोनों पाँव में आपको काले काले डोरे मिलेंगे. एक यहाँ पर काला तिलक और मिलेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. हाँ. So what do they believe? That these which have ability to change their body from animal to human, human to animal.
and these are very difficult to identifying in the society, क्योंकि आप उनको पहचान सकते क्यों, सुबह नॉर्मल हो जाएगी. सो विच हंटिंग इनमें बहुत ज्यादा होता है. और विच हंटिंग का शिकार कौन होता है? विडोज, या वो जिनके बच्चे नहीं होते, और चाइल्डलेस वुमन. ज्यादातर वो मानते हैं यही औरत है, या वो जिसका कोई नहीं है, इनको लगता है रात को मैजिकल प्रैक्टिसेस करती होगी. यस, हमारे यहाँ पे जो बांसवाड़ा का इलाका है बीलो में बहुत होता है विच हंटिंग. किसके लिए? कि जी हमारे घर में बीमार पड़ गया, ये औरतें मार देते पीठ पीट के. काफी घटना होती है झारखंड में, यहाँ पे विच क्राफ्टिंग की, बैगाज में बहुत होती है. किसी लेडी को मार दिया, संपत्ति के लिए मार दिया जी, चुड़ैल थी. नाउ यू आर नॉट देयर टू प्रूव ना, भाई रात को बिल्ली बन जाती सुबह औरत थी, तुम कैसे प्रूव करोगे? इट हैपेंस. सो विच क्राफ्टिंग, तो आईबीबो वाले, जेंडा वाले. जेंडा वाले कहते हैं दे possess वेरी सुपरनेचुरल पावर्स, दे कैन चेंज देयर बॉडी, and they are very it's very difficult to identify. They perform magic, they can kill anybody. और दूसरा आईबीबो वाले हैं, राइट. नोजा वाला, नवाजो वाले तो और भी आगे हैं. एक ट्राइब है जिसका काम है नवाजो. रेवा दो नवाजो. ये कहते हैं कि बिकॉज दे कहते हैं कि दीज विच कंज्यूम फ्लैश, ये लोगों को मार के खा जाती है, जिंदा लोगों का मांस भी खा जाती है, आदमी पतला होना शुरू हो जाता है, ये अंदर से खाना शुरू कर देती है. आप लगातार कमजोर हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है? विच. करा ले, तुझे या तो स्पीड मेडिटर या फिर डिवाइनर चाहिए. फटाफट मिल, दे विल रब द स्टिक, राइट. और जहां वो रुक जाएगी जिसके नाम पर, वही बिच होगा. सबके नाम ले जिन जिनका लेना है. सो विच क्राफ्ट हो गया. ये हमारे सारे टॉपिक्स हो गए इन दिस. नाउ देयर इज वन टॉपिक एज वी डिस्कस फर्स्ट, दैट इज मैजिक. मैजिक, मैजिक, जिसको लेकर कौन आया है हमारे सामने? जेम्स फ्रेजर, जिसने कहा था मैजिक, रिलीजन एंड साइंस. वी डिस्कस मैजिक. व्हाट इज मैजिक? मैजिक इज एन एक्ट which is performed. Magic is an act which is performed in a specific manner to manipulate the forces. Right? James Fraser differentiate magic. James Fraser differentiate magic in two forms. One is called imitating or homeopathic, and second is called as contagious. Right? Imitating magic believes in cause and effect. or like relates like relates like relates like. एक जैसी चीजें एक दूसरे जैसी होती है. जैसे अगर मैं आपका पुतला बना लूं तो उस पे मैं जो कुछ करूंगा वो तुम पे होगा. Like relates like. Like in chemistry we have one principle, like dissolves like. समान समान को घोलता है. ये कहता है like relates like. So if imitating machine क्या कहता है? Like relates like. So voodoo
voodoo, WOODOO, voodoo is based on this magic. Voodoo is based on this magic. Voodoo, जो भारतीय फिल्मों की जान है, एक काला कौवा नीम के पेड़ पे, उसके पास एक उल्टा लटका हुआ पुतला, फिर उस पुतला जो है उसको पकड़ा हाथ में आटे का बना, उसके वजह से स्पिन मारी फट, और भूत आने के टाइम में रात को 1:30 बजे, और रात को 1:30 बजे किसी को नहाना, और भूत बाथरूम के बाहर बैठा है, वो एक हवेली है, 7 लोग आते हैं, 7 में से 6 मरेंगे, एक बचेगा, और उसके नीचे उसकी कब्र है। दैट वाज द 70-80s मूवीज, 80 to 90s। अब तो भूत भी बदल गए हैं, अब तो भूतों के चेहरे बदल गए हैं। मुंजिया देखी थी? अच्छी आएगी, इसे कॉमेडी टाइप का भूत है, अच्छा। जिसको नहीं जानते, किसी ने सुना के जना दिया ना, भूत बनाना भूल जाओगे। हाँ, तुम्हारा अच्छी है, गुड मूवी। आपको लगता है कि मतलब वो एक मैंने बड़ा अच्छा सुना था कि अगर आप अकेलेपन का शिकार हो रहे हो ना, तो आप हॉरर मूवी देख लो, आपको अटैम लगेगा कोई ना कोई साथ में खड़ा है, यू डोंट फील अलोन, आपको लगेगा कोई खड़ा है आपके बिस्तर के पास में, हेलो आओ जो है खाना खा के जाना। चलो, सो सेकेंड इज कॉल्ड कॉन्टेजियस मैजिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, once in contact always in contact. Once in contact, so this magic is performed on clothes, hairs, nails, or any other things which were once in contact of a person. Which were in contact of a person. Right? हो गया? Sometimes magic is sometimes magic is differentiate in terms of white magic and black magic. White magic and black magic. White magic is performed for the welfare of the society, or it is benevolent. White magic is performed for the welfare of society, or for it is benevolent. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आई एम गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन। नॉर्थ इन अपनी सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स है, उसमें पहले बिलीव किया जाता था कि अगर किसी पर्सन को बुलाया जाए, उसकी गर्दन काट दी जाए, उसमें से जैसे जैसे खून के फव्वारे छूटेंगे वैसे वैसे बारिश के फव्वारे छूटेंगे। अच्छा बताओ, व्हाइट मैजिक है कि ब्लैक मैजिक है? Sometimes practice of cannibalism was also a part of magic to get this power of a person. जैसे मैंने कहा गर्दन काटी और उसके खून को एग्रीकल्चर फील्ड में इससे मानना बढ़ेगा, व्हाइट के ब्लैक, पर्सपेक्टिव चेंज। So white magic are oftenly regarded as benevolent magic or magic for the like magic for rain, magic for better harvesting, right? So these magic are often regarded as white magic for the healing. Black magic, malefic practices, evil practices, right? To harm others or the society.
राइट, जिसको हम काला जादू बोलते हैं, राइट. सो नाउ मैजिक एंड रिलीजन. इफ देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट मैजिक एंड रिलीजन, तो कैसे बताओगे? मैजिक एंड रिलीजन, देखो मैजिक एंड रिलीजन. हाँ, मेलाफाइड. एविल प्रैक्टिसेस, मेलाफाइड फॉर हार्म्स, राइट. सॉर्सर्स इसमें आते हैं, विचेज इसमें आती है, ब्लैक मैजिक में. नाउ मैजिक एंड रिलीजन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. So as we take magic, it was act performance, manipulation of the forces to control the forces. जादू क्या करता है? कंट्रोल करने की कोशिश करता है. रिलीजन क्या करता है? फेथ, डिवोशन, आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है, ब्लेसिंग लेने की कोशिश करता है. वो दे वांट टू मेक हैप्पी द गॉड. रिलीजन वांट्स टू कंट्रोल द फोर्सेस. वो कंट्रोल करके अपना काम करवाना चाहता है. तो इफ वी टॉक अबाउट द मैजिक एंड रिलीजन, सबसे पहले बंदा है दरखाइम. टू दरखाइम, मैजिक इज एंटी सोशल. टू दरखाइम, magic is anti-social and individual. It is not for the society. Magic is an individual performance and it is quite anti-social and it is not the part of religion. ये क्वेश्चन भाई 20 नंबर का आ चुका है, ठीक है. तो पहले लिखना है मैजिक क्या, रिलीजन क्या. हमने दो बात की. रिलीजन इज अबाउट फेथ एंड बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, बात की है ना हमने. टाइलर, दरखाइम क्या बात कर रहा है? देखो गौर करके सुनो. टू दरखाइम, मैजिक इज प्रोफेन एंड रिलीजन इज सैक्रेड. अलग अलग हो गया. सो रिलीजन इज नॉट फॉर द सुपरनेचुरल पावर, इट इज ऑर्डिनरी, इट इज प्रोफेन. ये प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है, राइट. रिलीजन इज इंडिविजुअल, मैजिक इज इंडिविजुअल. फॉर दरखाइम, मैजिक इज इंडिविजुअल, परफॉर्म बाय इंडिविजुअल फॉर द इंडिविजुअल. वेयर रिलीजन इज अ सोसाइटल बिलीफ. Right? Magic is not adhered to the church. Magic is not associated with the church community, whereas religion is. हम अभी दरखाइम पे चल रहे हैं. दरखाइम की जो है उसने कहा था कि a set of belief and practices to sacred things which formulates a moral community, right? Which is associated with the church. तो चर्च भी नहीं है यहां पे, कम्युनिटी भी नहीं है, और बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस भी नहीं है. सो टू इट, मैजिक इज नॉट अ थिंग. मैजिक इज एंटी सोशल, नॉट सोशल. मैजिक इज इंडिविजुअल एंड मैजिक इज नॉट बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, इट इज ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ फोर्सेस. नाउ टू मेलिनोस्की, magic is an integral part of rituals and performances. As he observed in Trobriand islanders. So one cannot separate magic from religion. क्लियर? टू जेम्स फ्रेजर. अब आते हैं उस आदमी पर जो मैजिक के कंसेप्ट को रिलीजन के साथ में जोड़ता है. टू जेम्स फ्रेजर. मैजिक was the primordial stage of religion. Magic was the primordial stage of religion. Where people tried to manipulate natural forces. But with the increasing consciousness and intellectuality, with the increasing consciousness and intellectuality,
A faith and belief system has evolved. And with this evolvement, magic evolved into religion. Right? Faith and belief, practices based on faith and belief, and then magic converted into religion. So magic is not here. James Fraser does not differentiate magic from religion. It says it is the prime stage of magic. Right? So to him, magic was the primordial stage of religion. Magic was the manipulation of forces to control them. And finally, when men became intellectual and concise, a faith and belief, in that faith or belief, this magic converted into religion. So magic is not different from religion, just a stage. Right? जैसे एम्ब्रोस से ह्यूमन बनता है. So ये इसका पार्ट है, इज मैजिक एंड रिलीजन. तो और अगर हमसे पूछे इसके अलावा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन, जैसे बात की मैजिक इज इंडिविजुअल, रिलीजन इज कलेक्टिव. मैजिक मैनिपुलेशन ऑफ फोर्सेस, religion is faith and belief in forces. Right? Magic can be white and black, religion cannot. Right? और क्या बताओ? वो तो हमने बात कर ली तीन लोगों की. मैंने इसलिए लिखवाया कि क्वेश्चन के अंदर अगर ये लिखेंगे ना, भाई बाकी चीजें लिख दी पर इन तीनों का एग्जांपल दिया. फ्रेजर ये बोलता है, मेलिनोस्की ये बोलता है, दरखम ये बोलता है, हमारा काम हो गया.